सो नॉर्थ साउथ का नैरेटिव अभी खत्म होगा. सो जून 4 में खत्म होगा. देयर विल बी नथिंग कॉल्ड नॉर्थ साउथ आफ्टर दैट. कर्नाटका में क्लीन स्वीप होगा, 28 सीट्स. गोवा में 2 को 2. पांडिचेरी में 1 सीट है. तेलंगाना में 17 में बीजेपी विल बी नंबर 1 पार्टी. आंध्रा में 6 सीट्स लोकसभा. बीजेपी इज फाइटिंग इन एन अलायंस. अदर पार्टीज आर आल्सो फाइटिंग. So you will see all the seats, all the states we will do well. Tamil Nadu में 39 seats. BJP NDA will be in double digit. Kerala में 20 seats. Again BJP NDA will do very well. वायनाड में बोला आप पूरा मेरा परिवार है. लास्ट टाइम अमेठी में बोला मेरा परिवार है. अभी रायबरेली में बोला रायबरेली मेरा परिवार है. So people don't want duplicity in politics. So people will give a very fitting lesson. क्या आप कहें उनका कोई मैजिक नहीं है बहुत. You see sir, whatever artificial construction Rahul Gandhi ji के पास कांग्रेस is doing, everything will fall flat on June 4. 1984 शुरू कर अभी तक ओवैसी जी का फादर के पास, ओवैसी जी का पास वो सीट है. Last 40 years the seat is one family, father and son. अभी और माधव जी has given a very very tough fight. Let us wait and see sir. आज इस खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं साउथ के सिंघम बीजेपी के स्टार प्रचारक के अन्नामलाई. सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो ताज़ा अपडेट है उसको लेकर के कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जो इजाजत दी गई है डीएमके सरकार की तरफ से, आपकी उस पर फर्स्ट रिएक्शन? Sir, nothing new. DMK has booked 88 cases against me. Nothing new. They have given 2 prosecution sanction in the last 1 year. So DMK का मन में क्या है सर? अन्नामलाई नहीं बात करना. He should not talk. Moment he talks, put on prosecution sanction. दोनों केस में एक ही कंप्लेनेंट है. दोनों केसेस में सेम कंप्लेनेंट सेलम में था. सेम पर्सन इज गिविंग कंप्लेंट. सो I will only continue to speak more. There is a court. We respect the sanctity of judiciary. The first prosecution sanction, we came to Supreme Court, we stated. Second prosecution sanction also will go to the court, sir. But Muthuramalinga, in a way I feel happy, sir, because Muthuramalinga Devarji is such an important person. ये prosecution sanction के बाद पूरा इंडिया में पता होगा मुथुरामलिंग देवर जी क्या है. So political vendetta है, 100% political vendetta, but we are not afraid. More cases they book, we are only become stronger. And our voice is traveled across to our country because many people will know what we are speaking. एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में सनातन ये मुद्दा कितना अहम है और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट नैरेटिव है सर ये इलेक्शन में, स्पेशली तमिलनाडु में. तमिलनाडु में हमारा को पता है लास्ट 1 ईयर में सनातन धर्म के विरुद्ध स्टालिन जी का भाषण, उदयनिधि स्टालिन जी का भाषण, डिफरेंट डीएमके लीडर्स का भाषण पीपल हैव सीन. So this time Indy Alliance का combined entity we have seen. So मेरा को बहुत confidence है this time this election में development what we have done in 10 years, next 5 years हमारा plan क्या है. At the same time Indy Alliance का nepotism, corruption, family politics, DMK का सनातन विरुद्ध खिलाफ what they do and everything will be a factor in this election. तो मैं ये भी जानना चाहूंगा अगर हम हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार क्या तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री हो पाएगी और पूरे दक्षिण भारत में मोदी मैजिक कितना है, कितना आपको दिखाई देगा ग्राउंड पे? Sir, we have to understand 2019 में BJP won more seats than Congress. We have to understand that. BJP always was winning more seats than Congress even in 2019. So 2024 you will see it going up. कर्नाटका में क्लीन स्वीप होगा, 28 सीट्स. गोवा में 2 को 2. पांडिचेरी में 1 सीट है. तेलंगाना में 17 में बीजेपी विल बी नंबर 1 पार्टी. आंध्रा में 6 सीट्स लोकसभा. बीजेपी इज फाइटिंग इन एन अलायंस. अदर पार्टीज आर आल्सो फाइटिंग. So you will see all the seats, all the states we will do well. Tamil Nadu में 39 seats. BJP NDA will be in double digit. Kerala में 20 seats. Again BJP NDA will do very well. So this will be the last time Congress is talking about North and South. So North South का narrative अभी खत्म होगा. So June 4 में खत्म होगा. There will be nothing called North South after that. तो क्या राहुल गांधी का वहाँ पे भी कोई असर है, कोई मैजिक है वहाँ पर साउथ इंडिया में? आप देखो सर, आप देखो, आप वायनाड में पूरा राहुल गांधी जी प्रचारम किया. प्रचार समय में नहीं बोला मैं नॉर्थ में 1 सीट में कंटेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बोला. सो हमारा बीजेपी का कैंडिडेट सुरेंद्रन जी था. सुरेंद्रन जी बहुत ओपन में बोला आफ्टर दिस इलेक्शन केरला वोटिंग के बाद राहुल गांधी जी विल गो फॉर अ सेकेंड सीट. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अ मॉरल बैंकरप्सी कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी जी से. वायनाड में बोला आप पूरा मेरा परिवार है. लास्ट टाइम अमेठी में बोला मेरा परिवार है. अभी रायबरेली में बोला मैं रायबरेली मेरा परिवार है. सो पीपल डोंट वांट डुप्लिसिटी इन पॉलिटिक्स सर. So people will give a very fitting lesson. क्या आप कहें उनका कोई मैजिक नहीं है साउथ? मैजिक बहुत. You see sir, whatever artificial construction Rahul Gandhi ji का पास कांग्रेस is doing, everything will fall flat on June 4.
अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर ओवैसी की हार क्या आपको इस बार निश्चित दिखाई दे गई है? माधवी ललिता वहां पर किस तरीके से जो है, एक टक्कर देंगे? बहुत सीट है, बहुत टफ सीट है सर। 60% के ऊपर उधर एक डेमोग्राफी का पॉपुलेशन है, बहुत टफ सीट है। 1984 शुरू कर अभी तक ओवैसी जी का फादर के पास, ओवैसी जी का पास वो सीट है। लास्ट 40 years द सीट इज वन फैमिली, फादर एंड सन। अभी और माधवी जी हैज गिवन अ वेरी वेरी टफ फाइट। लेट अस वेट एंड सी सर। और जो 15 मिनट बनाम 15 सेकंड का जो मुद्दा आया, नवनीत राणा ने कहा 15 सेकंड काफी है। आपको लगता है कि 15 सेकंड जो वाकई में काफी हैं जवाब देने के लिए ऐसी ताकतों को? So I will not get into that, sir. It's a country that is run on rule of law. We all have to respect the rule of law. And हैदराबाद में अभी पूरा नैरेटिव क्या था सर? एक अच्छा बीजेपी का बहुत पावरफुल कैंडिडेट है, बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अग्रेसिव कैंडिडेट है. And this point of time, you will see more number of people preferring BJP because the candidate is also giving confidence to the public. Hyderabad में बहुत ज़्यादा development we have done, and more importantly, they have also seen the misrule of Congress. Congress का misrule, they have seen it. So this time, as I said, it's a very tough constituency, very heavy. A particular segment of population is there. 40 years ओवैसी जी का फैमिली के पास है. But still, Madhavi ji has put up a great fight. Let us wait and see. अन्नामलाई जी, हिमांता कहते हैं कि 300 सीटें जब हमें मिली तो हमने अयोध्या का मंदिर बनाया, 400 मिलेगी तो काशी मथुरा होगा, पीओके को भारत में शामिल करने के लिए हिंदू मंदिर बनवाइए। आप भी क्या इससे ताल्लुक रखते हैं ऐसी बातों से? Sir, I'm not getting into that, sir. With due respect, our Modi ji has spoken that we will not get into issues that is sub judice. Some things are in court, and we will not. I would not like to talk about any issue that is beyond my pay grade. संजय राउत 10 साल का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का वोट्स मिले. संजय राउत जैसे लोग कहते हैं कि जैसे औरंगजेब को महाराष्ट्र में गाड़ दिया तो नरेंद्र मोदी तू कौन चीज है, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ और इस चुनाव में, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में, आप इस ये जो क्या बौखलाहट है विपक्ष की, किस तरीके से देखते हैं? The more Sanjay Rawat ji speaks, it's better for us. We are seeing what Sanjay Rawat ji is speaking for a long time. And he keeps blabbering, keeps talking, keeps making this allegation. The people of Maharashtra are very clear. Nobody is going to listen to Sanjay Rawat ji. Today, Modi ji's roadshow, you will see. Lakhs of people will turn up because they're very clear this time the vote is happening for Modi ji. आखिरी सवाल, विपक्ष कहता है कि बीजेपी इस बार एनडीए इस बार 200 भी पार नहीं हो पाएगी, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? टाइम्स नाउ नवभारत, There's no need to give any answer, sir. 380 seats में election has happened. We have already crossed majority. Another 163 seats का इलेक्शन बाकी है. Phase 5, Phase 6, Phase 7 बाकी है. 100% 370 बीजेपी का टारगेट है, एनडीए का 400. 100% we will get it. So there is no confusion. We are on. 400 बार तय. 100% we will get it. हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो अन्नामलाई बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार अब की बार 400 पार का ये नारा तय है और विपक्ष को भी काफी कड़े जवाब देते नजर आ रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ भारत।